सर अभी लिखना होगा क्या कुछ? लिखना नहीं है तुमको कुछ भी, बस ये वीडियो देखो, ठीक है। Straight line intersects a vertical line at a fixed point. तुम लोग को वीडियो की साउंड आ रही है क्या? वीडियो में जो बोल रहा है हाँ सर। आ रही है सर ना? थोड़ी कम आ रही है। ये तो फुल है बेटा, ध्यान से सुनो थोड़ा। And rotates about that fixed point. The surface obtained is called a double white circular cone. A double white circular cone consists of two cones joined at a fixed point called the vertex. The line that rotates about the vertex is called the generator, and the line that remains fixed is called the axis. A right circular cone has a circular base and its axis is always perpendicular line from the center of the base to the vertex. The perimeter of the base is called the directrix. The lateral surface of a right circular cone is called a nap. A double right circular cone has two naps. The nap above the vertex is called the upper nap, and that below the vertex is called the lower nap. Also, the angle between the generator and the axis is called the vertex angle. Conic sections. If a plane intersects a double white circle, चलो इतना उतना समझ में आया कि कौन डबल नैप कौन कैसे बनता है? यस सर। यस सर। ओके, तो डबल नैप कोन में क्या होता है कि एक वर्टिकल लाइन होती है और एक इंक्लाइन लाइन होती है, और वो लोग एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। अब वो इंक्लाइन लाइन उस पॉइंट के अबाउट रोटेट करती है तो एक कोन बनता है, डबल नैप कोन। मतलब हर एक पार्ट को नैप कहते हैं, तो इस ऊपर वाले पार्ट को अपर नैप और वाले पार्ट को लोअर नैप कहते हैं। और इस पॉइंट को क्या कहते हैं जहाँ पे दोनों नैप्स मिलते हैं? वर्टेक्स कहते हैं। अब ये एक प्लेन सरफेस है, ये जो ग्रीन वाला तुमको दिख रहा है ये क्या है? ये एक प्लेन सरफेस है तुम्हारा। अब ये अलग अलग एंगल्स पे कोन को इंटरसेक्ट करेगा और उससे कुछ बाउंड्री टाइप की बनेगी। जैसे ये देखो, ये एक बाउंड्री बन रही है, अभी तुमको और दिखेगा, क्लियरली दिखेगा, ये बाउंड्री बन रही है। तो इस सर्कमफेरेंस को ही हम लोग क्या कहते हैं? ये जो बाउंड्री का सर्कमफेरेंस है, उसको कलर कर दो तो उससे कुछ कर्व्स बनेंगे। वही सब अलग अलग कोनिक सेक्शंस होते हैं, ठीक है। तो कोनिक सेक्शन का क्या मतलब है? कोन्स के अलग अलग एंगल्स पे सेक्शन कर देना। अब फिर से कंटिन्यू करते हैं। हाँ, we get two-dimensional curves of different types. These curves are called conic sections. Depending on the angle made by the plane with the vertical axis of the cone, the plane can come in three different ways. Ellipse. अब एलिप्स के बारे में बता रहा है, कैसे बनेगा एलिप्स। When the plane intersects the double white circular cone in such a way
that the angle between the plane and the axis is greater than the vertex angle, वर्टेक्स एंगल ये होता है, ये वाला एंगल. we get a closed curve called an ellipse. When the plane is perpendicular to the axis, the ellipse becomes a circle. Thus, a circle is a special type of ellipse. Parabola. When the angle made by the plane to the vertical axis is exactly equal to the vertex angle, we get an open curve called a parabola at the intersecting surface of the goal. Hyperbola. The plane intersects only one half of the double white circular cone as long as the angle between the plane and the vertical axis is greater than or equal to the vertex angle. However, if the plane intersects the vertical axis at an angle smaller than the vertex angle, the plane intersects both the nubs of the cone to form an open curve called a hyperbola, which has two disjoint curves. Degenerate conics. If the plane intersects the double white circular cone at its vertex, the ellipse becomes a point. The parabola becomes a line, and the hyperbola becomes two intersecting lines. The figures so obtained are called degenerate conics. In this module, you have learned that when a plane intersects a double white circular cone, समराइज कर रहा है. two-dimensional curves called conic sections are formed. There are three types of conic sections: ellipse, parabola, and hyperbola. When the double white circular cone, when a straight line, the figures a double white circular cone, two-dimensional curves called conic sections are formed. There are three types of conic sections: ellipse, parabola, and hyperbola. When the double white circular cone is cut, देखो वैसे तो ये बोल रहा है कि देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कोनिक सेक्शन, एलिप्स, पैराबोला एंड हाइपरबोला. लेकिन हम लोग क्या कहते हैं कि सर्कल भी आता है उसमें, और सर्कल जो होता है वो एलिप्स का एक स्पेशल केस होता है. ठीक है. सो इन जनरल जब कोनिक सेक्शन की बात होती है, जैसे मैं कहूंगा कि कोनिक्स कर लिया या कोनिक्स आता है, सो आई विल बी टॉकिंग अबाउट एलिप्स, पैराबोला एंड हाइपरबोला. जबकि एक्चुअल में कोनिक सेक्शन में सर्कल भी आता है, सर्कल, एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला. एंड सर्कल इज अ स्पेशल केस ऑफ एलिप्स. for the plane, so that the angle between the plane and the axis is greater than the vertex angle, the ellipse is obtained. When the plane is perpendicular to the axis, the ellipse changes into a circle. If a double white circular cone is cut by a plane so that the angle between the plane and the axis is equal to the vertex angle, the parabola is formed. If a double white circular cone is cut by a plane so that the angle between the plane and the axis is less than the vertex angle,
a hyperbola is formed. If a plane intersects the double white circular cone at its vertex, the figures formed are called ओके, इतना समझ में आ गया तुम सबको? Yes. Yes, sir. Yes, sir. ओके, मैं ये वीडियो तुम लोग को ग्रुप पे भी शेयर कर दूंगा कि बाद में। हाँ, वैसे इसका इतना सच कोई क्वेश्चन सॉल्व करने में तुम्हारा कोई यूज नहीं रहेगा। बस हम लोग कोनिक सेक्शन में एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला इन सबको क्यों काउंट करते हैं, तो वो बताना जरूरी था, तो इसलिए ये वीडियो दिखाया हम लोगों ने। फाइन, अब हम लोग मेन टॉपिक पे चलते हैं। ठीक है, जिसका कोई भी चीज थोड़ा सा मिस हो गया हो, मैं वीडियो की लिंक ग्रुप पे सेंड कर दूंगा, तो वो तुम क्लास के बाद देख लेना। हाँ हाँ, तो अपने क्या कर रहे थे? स्टार्ट करते हैं। सो कोनिक सेक्शंस में क्या क्या आता है अपने? वैसे तो सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला चारों चीज आती है। हम लोग पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला ये पढ़ेंगे। सर्कल्स तो ऑलरेडी पढ़ ही चुके हम लोग। सर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस भी कोनिक्स का पार्ट हाँ होता है ना? हाँ, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस भी कोनिक्स का पार्ट होता है, वो डीजनरेट कोनिक्स का पार्ट होता है। डीजनरेट कोनिक्स बताया था ना उस एग्जाम, मतलब उस वीडियो में, कि जब प्लेन जो है वर्टेक्स पे इंटरसेक्ट करता है, यहाँ पे इंटरसेक्ट करता है, जैसे मान लो ये प्लेन जो है वर्टेक्स पे इंटरसेक्ट किया, तब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस बनेगी। ठीक है, अगर ऐसे इंटरसेक्ट किया तो एक पॉइंट ही बनेगा, और अगर ऐसे इंटरसेक्ट किया तो एक सिंगल लाइन बनेगी। ठीक है, तो सॉरी, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस भी कोनिक सेक्शन होता है। कोनिक सेक्शन में अगर तुम देखो तो पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, चलो लिख लेते हैं, सर्कल भी आता है एंड पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस भी आता है। अच्छा, अगर तुम देखो तो फोर्थ और फिफ्थ हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं शुरू के चैप्टर्स में, तो हम लोग को ये 3 चैप्टर्स पढ़ने हैं, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला। अब देखो, कोई भी कोनिक सेक्शन होता है ना, उसकी एक प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी ऑफ कोनिक्स। सो ये प्रॉपर्टी किसके लिए ट्रू होगी? सारे कोनिक्स के लिए ट्रू होगी, पैराबोला हो चाहे एलिप्स हो चाहे हाइपरबोला हो, ये सारे कोनिक्स के लिए ट्रू होगी। वो प्रॉपर्टी क्या होती है कि इट इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट such that ratio of its distance from fixed point to its distance from a fixed line is always constant. ठीक है, इट इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट। अच्छा रुको एक मिनट, मैं होस्ट भी उसको बना देता हूँ। जो भी चैट बॉक्स में तुमको लिखना होगा
वो एक गौरव नाम से लॉगिन किया हुआ है, ये ठीक है, उस पर चैट बॉक्स में लिखना। हाँ, सर्कल्स के नोटबुक में ही कंटिन्यू करना है तुमको, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ही पार्ट है। सो ये प्रॉपर्टी हर एक कोनिक के लिए ट्रू है। इट इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट सच दैट द रेशियो ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड लाइन इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो जैसे मान लो कोई एक फिक्स लाइन है से, और कोई एक फिक्स पॉइंट है से एस। अच्छा, जैसे मान लो कि हम लोग को चाहिए, हम लोग को क्या चाहिए, पी एस अपॉन पी एल से हाफ हो जाए, पी एस अपॉन पी एल हाफ हो जाए, मतलब किसी पॉइंट का एस से डिस्टेंस होल अपॉन किसी पॉइंट का एल से डिस्टेंस, उसका रेशियो क्या हो जाए, 1/2 हो जाए। तो जैसे मान लो कि से एक पॉइंट पी यहाँ पे हो गया। अच्छा, इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस, जैसे मान लो ये डिस्टेंस x है, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, से 2x। अच्छा ये बताओ, ये रेशियो वाले पॉइंट्स जो है वो एक ही होंगे कि और भी होंगे? सर और भी होंगे। और भी होंगे। और होंगे, जैसे मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट हो गया, से इसको मैंने p डैश बोल दिया, इसका s से डिस्टेंस और इसका l से डिस्टेंस, मैं ये तो रेशियो सेम होना चाहिए। जैसे मान लो ये इतना लेंथ y है, इतना लेंथ 2y है, तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स होंगे। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स को जब मैं कनेक्ट करूंगा तो कुछ एक कर्व टाइप का बनेगा क्या? हाँ सर। तो इसी कर्व को हम लोग, यही जो कर्व होता है वो इन कोनिक्स में से कोई एक कर्व होता है। ये जो कर्व होता है वो क्या होता है, इन कोनिक्स में से कोई एक कर्व होता है। तो जो कौन सा कर्व होगा, पहले सॉरी पैराबोला होगा, एलिप्स होगा या हाइपरबोला होगा, वो किस बात पे डिपेंड करेगा? वो रेशियो कितना है? रेशियो कैसा है, रेशियो कितना है, ठीक है, वो इस बात पे डिपेंड करेगा। अभी धीरे धीरे तुमको एट द एंड ऑफ द क्लास चीजें तुमको थोड़ी क्लियर होती जाएंगी। अभी स्टार्टिंग में थोड़ा सा मिसमैनेज लगेगा, लेकिन धीरे धीरे क्लियर होती जाएगी। सो जो फिक्स्ड पॉइंट होता है उसको हम लोग कहते हैं फोकस ऑफ द कोनिक्स, और जो फिक्स्ड लाइन होती है उसको हम लोग कहते हैं डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द कोनिक्स। ठीक है, the fixed point is called focus and the fixed line is called the directrix of the conics। ठीक है, अच्छा कोनिक सेक्शन में मैं क्या कहता हूं जनरली कि कोनिक सेक्शन अगर मैं बात कर रहा हूं कभी भी, तो मैं किसकी बात करूंगा, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला। और सब लोग अगर कोई पूछ रहा है कोनिक सेक्शन रेडी है कि नहीं है, मतलब दे आर टॉकिंग अबाउट पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, इनके बारे में बात की जा रही है। सो एक पॉइंट है कि conic section is formed when conic section is formed when focus does not lie on the directrix।
मतलब जो फिक्स्ड पॉइंट है और जो फिक्स्ड लाइन है, जो फिक्स्ड पॉइंट है और जो फिक्स्ड लाइन है, जो फिक्स पॉइंट है और जो फिक्स लाइन है वो लोग मतलब सेटिस्फाई नहीं कर रहे। जैसे तुम यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या फिक्स पॉइंट जो है एस, वो फिक्स लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है क्या? उसके ऊपर लाई कर रहा है? नहीं, देखने में ही पता चल रहा है नहीं कर रहा है। समझ में आई बात? अच्छा, इस पॉइंट के बारे में अभी हम लोग आगे बहुत ढेर सारा डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो फिक्स, जब जब फोकस डायरेक्ट्रिक्स पे लाई करे तब क्या सीन होता है। सो व्हेन फोकस, तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस बनेंगे ना। हाँ सर फिर तो पीएस और पीएम सेम ही हो जाएगा। देखो अभी समझ में आएगा। पीएस और पीएल सेम नहीं होगा। when focus lies on the directrix, थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर सकते, नोट करना है। जल्दी जल्दी नोट करो सब लोग। हाँ उत्तर, ये जो पॉइंट्स हैं वो इस कर्व, जैसे मान लो ये कोई कर्व बनता है, ये हो सकता है पैराबोला बन जाए, हो सकता है एलिप्स बन जाए, हो सकता है हाइपरबोला बन जाए। दैट डिपेंड्स अपॉन द रेशियो। ठीक है, अब चलो व्हेन फोकस लाइज ऑन द डायरेक्ट्रिक्स, तो इसमें क्या सिनारियो बन रहा होगा देखो जरा। जैसे मान लो ये हमारा डायरेक्ट्रिक्स है, मतलब इसको लाइन कह दिया। अच्छा, वैसे जनरली हम लोग फोकस और डायरेक्ट्रिक्स वर्ड का यूज जो है जब पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला की बात होती है ना, हम लोग तब करते हैं फोकस डायरेक्ट्रिक्स वर्ड का यूज। तो जैसे हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे वो करेंगे कि जो फोकस मतलब जो फिक्स पॉइंट है लाइज ऑन द फिक्स्ड लाइन। ठीक है, जैसे मान लो ये L है और ये S है। अब देखो, जैसे मान लो कि हम लोग ये एक्सपेक्ट करें कि PS अपॉन PL से 2 हो जाए, केस 1। तो बताओ P मान लो कहीं यहाँ पे होता, हो सकता है P का ऐसे डिस्टेंस कितना होता, 2x। कितना होता, और P का L से डिस्टेंस ये होता। तो ये हो सकता है ना, ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है ना कि हाँ PS सर। हाँ सर। अपॉन PL जो है वो 2 हो जाए। सॉरी, अच्छा ऐसा एक ही P हो सकता है कि ऐसा और भी P हो सकता है? तो और भी सर P और और भी भी P हो सकता है। और भी P हो सकता है। अच्छा, और भी P जो है वो जैसे हम ऐसे कह सकते हैं कि इसी लाइन को अगर मैं एक्सटेंड करूं तो यहाँ पे P लूं, तब भी PS अपॉन PL, उनका रेशियो जो है वो अभी भी 2 ही आएगा। यस सर। सर अगर
बात समझ ले में? ले तभी भी सेम ही रहेगा ना। सर वो साइन थीटा सेम रहेगा ना, क्योंकि वो एंगल से। हाँ सर अगर आप उसका हाँ, sin रिफ्लेक्शन theta ले same लो। है। रिफ्लेक्शन ले लेंगे तभी भी। हाँ हाँ, एक ऐसा सिनारियो भी बन सकता है। Similar triangle. हाँ Triangles similar है ना? हाँ, सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। तो जैसे मैं जो हाईलाइट कर रहा हूँ ना ग्रीन कलर से, वो पी कहाँ कहाँ लाई कर सकता है उसको हाईलाइट कर रहा हूँ, ऐसे टाइप का। तो पी इन पे लाई कर सकता है, तो हम लोग यहाँ से पी का लोकस क्या बोल सकते हैं? पेयर लोकस ऑफ पी विल बी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। दो स्ट्रेट लाइंस है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। लोकस ऑफ पी विल बी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। अच्छा, इतना बोलना तो काफी नहीं होगा। सामने वाला और कुछ भी एक्सपेक्ट करेगा कि भाई तुम उस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस का इक्वेशन बताओ। तो देखो, जैसे मान लो ये एंगल अगर थीटा है और ये एस है, तो पी एस अपॉन पी एल अगर 2 है, तो पी एस अपॉन पी एल एक तरीके से क्या हो गया? कोसेक थीटा। अग्री करोगे? पी एस अपॉन पी एल हाँ क्या सर। होगा? हाँ सर। कोसेक थीटा। हाँ सर। तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू 2, मतलब थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। सो अब मैं और क्या बोल सकता हूँ? अब मैं और थोड़ा डिटेल में बोल सकता हूँ जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस है, कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस will be such that it will pass through the given fixed point S, जिसको S कह रहे हैं, and makes an angle say 30 डिग्री इस केस में with the given line, with the given line। ऐसा कहा जा सकता है। बोलो बच्चों। अच्छा, अगर मेरे से ये जो दो लाइंस क्रिएट होती, जो दो ग्रीन वाली लाइंस है, उनका इंडिविजुअल इक्वेशन पूछे तो क्या मैं वो फाइंड कर सकता हूँ क्या? ये जो दो ग्रीन लाइंस है, तो इसको मैंने L1 L2 नाम दे दिया, इनका इंडिविजुअल इक्वेशन क्या मैं फाइंड कर सकता हूँ? हम लोग को नोन क्या क्या है? हम लोग को नोन है S का कोऑर्डिनेट और L का इक्वेशन, हाँ सर, तब फाइंड कर ये सकते नोन है हैं। या गिवन है। सर हम लोग को एल का इक्वेशन पता है तो हम लोग एल का स्लोप निकाल सकते हैं, और फिर हमें L1 और L के बीच का एंगल पता है, तो फिर हम बस वो वाला tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 वाला यूज। हाँ एग्जैक्टली। देखो, हम लोग को L1 अगर इक्वेशन चाहिए, इसका मतलब क्या है कि लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए क्या चाहिए? एक सर पॉइंट स्लोप है हमारे पास और और पॉइंट भी है ना एस। और स्लोप चाहिए, ठीक है। अच्छा, पॉइंट तो डायरेक्टली नोन ही है, एस वाला पॉइंट नोन है। अब एल का अगर स्लोप, एल का इक्वेशन नोन है, मतलब एल का स्लोप नोन है, और हम लोग को Yes, थीटा भी नोन ही हो गया, थीटा भी पता ही चल गया। थीटा कहाँ से आता? इससे आता। तो थीटा नोन है, तो हम लोग ऐसे लिख लेते हैं कि tan 30 डिग्री इज इक्वल टू, जैसे मान लो इसका स्लोप m ले लिया और इसका स्लोप से m नॉट है, तो मॉड ऑफ m माइनस m नॉट होल अपॉन 1 प्लस m नॉट। इस मॉड को ओपन करोगे तो 2m की वैल्यू आएगी। 2m की वैल्यू क्यों आएगी? लाइन 1 और लाइन 2 दोनों के लिए आ जाएगी। क्या हुआ? सर मैं पूछ रही थी उसका रिफ्लेक्शन भी ले सकते हैं ना? तो रिफ्लेक्शन लेना ज्यादा मेहनत का काम हो जाएगा बेटा। रिफ्लेक्शन लेने से अच्छा है कि ये, और वैसे भी ये वाई एक्सिस थोड़े, मतलब मैंने भले ही और ये लाइन हॉरिजॉन्टल तुमको दिखा के रखी है, लेकिन जरूरी थोड़ा है कि लाइन हमेशा हॉरिजॉन्टल ही हो। हाँ सर।
ठीक है। अच्छा तुमको पता है ये जो रेशियो होता है PS अपॉन PL, रेशियो PS अपॉन PL, इसको जनरली ना E से डिनोट किया जाता है इस रेशियो को। तो ये जो E है वो 2.73 वाला नहीं है, ठीक है। ये जो E है इसको हम लोग क्या कहते हैं, एसेंट्रिसिटी। एसेंट्रिसिटी मतलब वही फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस होल अपॉन फिक्स लाइन से डिस्टेंस। हमेशा याद रखो कि एसेंट्रिसिटी की जब बात हो रही होगी तो पॉइंट वाला ऊपर होगा, लाइन वाला नीचे होगा, ठीक है। PS अपॉन PL इज PL अपॉन PS, उसको E नहीं कहेंगे, PL अपॉन PS फिर वो 1/E हो जाएगा, ठीक है। इतना समझा सबने? अच्छा अब जैसे मान लो एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग। एक लाइन है x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और एक पॉइंट है g, ठीक है। then find locus of point P such that PS upon PL is equal to √2. PS upon PL is equal to √2. हुआ ये? चलो तो सबसे पहला काम क्या होगा, ये पहचानना कि लोकस कैसा होगा,
तो देखो 3,6 क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है L को। satisfy कर रहा हूँ। सेटिस्फाई कर रहा है एल को। इसका मतलब, और जो रेशियो है, जो रेशियो ई है जो 1 से बड़ा है, ई जो है वो 1 से बड़ा है, तो लोकस विल बी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। पहली तो ये बात हो गई कि लोकस क्या होगा हमारा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। अच्छा, अब अगर तुम ध्यान दो तो इससे मान लो ये अगर लाइन है तो जो एंगल थीटा होता है वो क्या होता है, कोसेक थीटा इज इक्वल टू, यही जो रेशियो होता है वही होता है कोसेक थीटा रूट 2, मतलब थीटा क्या हो जाता है 40 45 डिग्री। अच्छा, यहाँ पे मैंने जो है ना क्वेश्चन उस हिसाब से दिया है। देखो इस लाइन का स्लोप क्या है, 1 1 है, 1 है ना। मतलब ये लाइन एक तरीके से तुम अगर रियल टाइम में देखो तो ये 3,6 से पास कर रही है एल, और ये लाइन जो एक्स एक्सिस है मतलब हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री बना रही है। अब जो हमारी लोकस वाली लाइन है वो इस लाइन से 45 डिग्री बनानी चाहिए, तो वो कैसी लाइन होती बताओ। इस लाइन से 45 डिग्री मतलब वो वर्टिकल बन जाता एक, और दूसरा क्या बन जाता, हॉरिजॉन्टल। आ रही बात समझ में, दूसरा क्या बन जाता तुम्हारा, हॉरिजॉन्टल। तो जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस थे, तो यहाँ पे मैंने ऑब्जर्वेशन बेस कर लिया, यहाँ पे अलग से मैंने स्लोप निकालने की कोशिश नहीं की, tan थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे मैंने ऑब्जर्वेशन बेस कर लिया कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस में एक इक्वेशन तो वर्टिकल लाइन है, वो क्या है x इज इक्वल टू 3, और दूसरी इक्वेशन हॉरिजॉन्टल लाइन है, मतलब y इज इक्वल टू 6, मतलब x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 एंड y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब अगर जैसे मान लो कोई इंडिविजुअल इक्वेशन पूछता तो मैं कहता कि ये जो है इंडिविजुअल इक्वेशंस है, और अगर मेरे से कोई जॉइंट इक्वेशन पूछ लेता ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस तो मैं जॉइंट इक्वेशन क्या बोलता, x माइनस 3 इंटू वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0, या मल्टीप्लाई करके देख लो क्या बनेगा, एक्स वाई माइनस 6x माइनस 3y प्लस 18 इज इक्वल टू 0। समझ में आई बात। यस सर। यस तो ये जो है लोकस का इक्वेशन है, आप लास्ट वाला ये पॉइंट जो है रिपीट लोकस का कर इक्वेशन है। लास्ट वाला पॉइंट रिपीट करो, कहाँ से, ये जॉइंट, ये समझ में आया। सर वही वाला पॉइंट। अच्छा देखो हमारी लाइन जो हाँ है सर उसका समझ गया स्लोप कौन था, समझ गया। सबको समझ में आ गया, किसी को डाउट है, सर मैंने PS और सर PL को एनीवन। डाल के निकाला। हाँ सर मैंने PS और PL क्या, को H और K की टर्म्स में डाल के निकाला। हाँ वैसे भी कर सकते हैं, जैसे तुम बोल रहे हो मेथड 2 कि PS अपॉन PL जो है वो √2 है। हाँ मतलब हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि PS का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स PL का होल स्क्वायर। जैसे P को आप H कॉमा K ले लो, S क्या था बताओ, 3,6, और L क्या था x माइनस वाई प्लस 3। तो PS का होल स्क्वायर क्या बनता, PS का होल स्क्वायर क्या बनता बच्चों, h माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस k माइनस a 6 माइनस 6 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स PL का होल स्क्वायर। अब देखो पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, वो परपेंडिकुलर ड्रॉप करके ax1 h प्लस माइनस by1 k प्लस 3 रूट बाय रूट 2।
अब देखो बाय रूट इसका होल स्क्वायर है, मतलब हाँ सर, तो कैंसिल ये हो 2 हो कैंसिल हो जाता, जाएगा। समझ रहा है? जाएगा। अब यस सर। तुम जैसे मैं तुमको थोड़ा कैलकुलेशन ईज अप कराने के लिए, कि थोड़ा तुम्हारा कैलकुलेशन अच्छा हो जाए, अच्छा करने के लिए क्या करें बताओ? h माइनस सिक्स, सर मतलब हम ये बोल सकते हैं ना, एच स्क्वायर के स्क्वायर वाले टर्म्स कट जाएंगे, इधर से एक 9 भी कट जाएगा, हाँ तो -6h हाँ, और मैं थोड़ा अच्छा और थोड़ा अच्छा कैलकुलेशन दिखा रहा हूँ। जैसे ये अंदर वाली चीज है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो क्या? देखो जरा अंदर वाली चीज, हाँ सर। हाँ सर। सर कंप्लीटिंग द स्क्वायर कर सकते हैं। वो सब नहीं करना बेटा। देखो इससे क्या होता, अब जैसे इसको a ले लो, इसको b ले लो तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर टाइप की चीज बन जाएगी। सर तो बस -2a भी बचेगा। क्या बनेगा? हाँ, -2 टाइम्स h माइनस 3 इंटू k माइनस 6, ये और ये चलेगा। देखो मतलब कितना साफ सुथरा हो गया। तो एक तरीके से क्या बचा, बस यही बचा, ये बचा, मतलब क्या हो गया, h माइनस 3 इंटू के माइनस 6 इज इक्वल टू 0। फिर h और k को x और y से रिप्लेस किया। ठीक है। अच्छा, क्या यही हमारा ऊपर भी आया था क्या, जो हम लोग ने अपनी अंडरस्टैंडिंग से किया था? ओके, ये समझ में आया सबको? मेथड 2 भी। हाँ सर। यस सर। सो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ने क्या किया था, यहाँ पे जो एग्जांपल लिया था, वहां पे जो रेशियो लिया था वो 2 लिया था, मतलब वो 1 से बड़ा था। अब केस 2 लेते हैं, अगर e की वैल्यू 1 हो, अगर e की वैल्यू 1 हो, केस 1 में क्या था, e की वैल्यू 1 से बड़ी थी। परपेंडिकुलर हो जाएगा ना, परपेंडिकुलर बाय मतलब और परपेंडिकुलर होगा अच्छा, ना पासिंग अभी थ्रू एज। फोकस लाइज ऑन डायरेक्ट्रिक्स ही है, ठीक है, फोकस लाइज ऑन डायरेक्ट्रिक्स ही है। हाँ सर, तो तो फिर मतलब PS हम इक्वल लोग टू क्या PL करें? के लिए हम लोग एस परपेंडिकुलर से ड्रॉप कर पास देंगे करने ना। वाला एक एस से परपेंडिकुलर लाइन जो एल से हाँ सर। परपेंडिकुलर। अच्छा बताओ, p यहाँ पे हो सकता है क्या? नहीं हो सकता सर। नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। अच्छा, p यहाँ पे जस्ट ऊपर हो सकता है? यस सर। सर मतलब थोड़ा यस, सा राइट में क्योंकि होगा। इस पॉइंट से अगर ये वो एकदम हाँ वर्टिकली सर। अबव, हाँ सर। ठीक है, तो p का s से जो डिस्टेंस है वो ये होता, और p का जो l से डिस्टेंस है वो भी यही होता। तो हम लोग क्या कहते हैं कि हमारा जो लोकस होता वो ये वाला लोकस होता। से अगर मैं इसको ग्रीन कलर से कर दूं, यही लोकस होता हमारा। इस केस में हम लोग क्या कहेंगे कि locus will be a single straight line. Locus will be what? A single straight line passing through and perpendicular to L. Locus will be a single straight line passing through S and perpendicular to what? L. समझ में आया? So अब जैसे मान लो अगर तुमको इसके ऊपर क्वेश्चन करना है,
कि x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एक लाइन है और एक पॉइंट है 2,1, ठीक है। PS अपॉन PL इज इक्वल टू 1 है, देन फाइंड locus of P, then find the equation of locus of P। देखो अगर जैसे मैं पूछूं कि फाइंड द लोकस ऑफ P, तुमको ये बताना होगा कि कैसे टाइप का लोकस दिख रहा होगा। at 2x minus 1 minus 3 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। हाँ ठीक है। चलो हुआ तुम लोग का। हम लोग को क्या करना होगा, इसी के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी होगी जो इस पॉइंट से पास कर जाए। तो देखो x प्लस 2y है तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगी 2x माइनस वाई, और कांस्टेंट टर्म फाइंड करने के लिए 2,1 डाल दिया तो 2 2 जा 4 माइनस 1 विच इज 3। सो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। यही जो है वो क्या आ जाएगा आपका लोकस ऑफ P, ठीक है। अच्छा इसको अगर हम लोग मेथड 2 से करेंगे तब भी यही आएगा क्या? मेथड 2 मतलब PS is equal to PL, PS square is equal to PL square। हाँ सिंप्लीफाई करने पे उसमें भी यही आएगा, जैसे हम लोग ने मेथड 2 में ऊपर करके दिखाया था ना, तो सेम आया था कि नहीं आया था? हाँ सर। दोनों जगह से। ओके अच्छा केस 3 है कि इफ E इज लेस देन 1, जो कांस्टेंट रेशियो है वो 1 से छोटा है, ठीक है। एक मिनट रुकना। हाँ तो अगर E 1 से छोटा होता, मतलब रेशियो वो 1 से छोटा होता ये पॉसिबल नहीं होना चाहिए। एंड ग्रेड लाइन छोटी सारे पॉइंट्स होते हैं। फोकस लाइट ऑन डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है, लाइट ऑन डायरेक्ट्रिक्स, वो फिक्स पॉइंट जो वो फिक्स लाइन के ऊपर लाइट करता है, मतलब ये L है और ये फिक्स पॉइंट है। तो बताओ P यहाँ पे हो सकता है क्या? नहीं सर। नहीं हो सकता क्योंकि ये तो रेशियो 1 से बड़ा हो जाएगा, नहीं हो सकता। अच्छा P यहाँ पे हो सकता है? नहीं सर। नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो रेशियो 1 के बराबर हो जाता। अच्छा ये सोचो कि P क्या लाइन के ऊपर हो सकता है क्या? नहीं सर, नॉट डिफाइंड हो नहीं, जाएगा अगर ना। P लाइन PL 0 हो जाएगा। तो फिर PL 0 हो जाएगा। वो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। नॉट हाँ डिफाइंड। अगर P, हाँ P अगर पॉइंट P लाइन के ऊपर हो जाए तो फिर तो PL 0 हो जाएगा, वो तो अनडिफाइंड हो जाएगा। इसका क्या मतलब है कि ऐसा कोई भी पॉइंट है ही नहीं स्पेस में जहाँ पे PS अपॉन PL 1 से छोटा हो जाए। इस केस में कब? जब S लाइन के ऊपर लाई कर रहा हो। सो हम लोग क्या लिखेंगे
क्या लिखने वाले हैं? नो लोकस इज पॉसिबल इन सच केस। नो लोकस इज पॉसिबल इन सच केस या नो सच पॉइंट इज पॉसिबल, और मैंने तुमको उसका एक्सप्लेनेशन भी दे ही दिया है। ठीक है, ये समझ में आ गया सबको? क्या ये क्लियर है? यस सर। ओके, सो अच्छा, अगर कोनिक्स पे आए तो कोनिक्स में क्या होता है? कोनिक्स कब बनता है? जब फोकस डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर लाई ना करे। तो अब तुमको थोड़ा सिग्निफिकेंस समझ में आया होगा, मतलब जब हम लोग ने बहुत सारी बातें की कि जब फोकस डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर लाई कर रहा है तो क्या बन रहा होगा। कोनिक्स क्या होगा? जब फोकस does not lie on directrix, when focus does not lie on directrix. ओके, अच्छा, कोनिक्स में जनरली पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला होता है। तो एसेंट्रिसिटी वर्ड का जो ओरिजिन हुआ वो एक्चुअली इन तीनों के लिए ओरिजिन हुआ है, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला के लिए। तो पैराबोला के लिए जो एसेंट्रिसिटी होती है वो 1 होती है, एलिप्स के लिए जो एसेंट्रिसिटी होती है वो 1 से छोटी होती है, और हाइपरबोला के लिए जो एसेंट्रिसिटी होती है वो 1 से बड़ी होती है। ठीक है, हाइपरबोला के लिए जो एसेंट्रिसिटी होती है वो 1 से बड़ी होती है। तो अब ट्रू एंड फॉल्स जैसे बोलते हैं कि if PS upon PL is equal to 1, then locus will always be parabola. फॉल्स रहेगा। सर False ये true। सर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस भी हो सकता है अगर एस पी एल पे है तो। हाँ, ये false होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैंने S और L के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी है कि S L के ऊपर लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो if, तो इसका अगर मेरे को मतलब पूरा एकदम डिटेल में लिखना है तो क्या कहता है? if S lies on L, then locus क्या होता है बताओ? एक सिंगल स्ट्रेट लाइन होती है। सर जो ये सिंगल स्ट्रेट लाइन है ये दो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस का कोइंसिडेंस है क्या, वैसा कुछ? हाँ, ऐसा कह सकते हैं कि जो सिंगल स्ट्रेट लाइन है वो दो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस का कोइंसिडेंस है, लेकिन दिखने में तो हम लोग को एक ही लाइन दिख रही है। यस सर। ठीक है, तो हम लोग सिंगल स्ट्रेट लाइन ही कहते हैं। सो सिंगल स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू एल एंड पासिंग थ्रू व्हाट? एस। अच्छा, इसी में अगर मैं लिखूं इफ एस डज नॉट लाई ऑन एल, तब लोकस जो है वो क्या होगा? पैराबोला होगा। अच्छा, उस पैराबोला का इक्वेशन वगैरह क्या होगा वो अभी हम लोग आगे आने वाले चैप्टर में देखेंगे पैराबोला में। तो अगर तुम देखो तो हम लोग ने पैराबोला अभी तक स्टार्ट ही नहीं किया। अभी तक हम लोग ने क्या किया? जनरल कोनिक्स के लिए बात कर रहे हैं। अच्छा, ट्रू एंड फॉल्स। इफ PS अपॉन PL is equal to 2,
locus will be hyperbole. क्या होगा ये? सर वापस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस हो सकता है ना? वापस पियर से ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है. सर, जब बस लेस देन 1 होगा तभी एक केस होगा. सो इसमें भी दो सीन अब ऐसे ही लिख सकते थे इसी में कि S on L तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस एंड S not on L तो हाइपरबोला. अच्छा, अगर PS अपॉन PL से हाफ है, अगर PS अपॉन PL हाफ है तो यहाँ पे भी दो सिनारियो बन सकते हैं कि S on L तो क्या होता, कोई भी लोकस नहीं होता. अब तुमको लग रहा होगा कि सर इक्वेशन तो आ रहा है ना, तो आप कैसे कह रहे हैं कि कोई भी लोकस नहीं होता, तो मैं बता रहा हूँ. एंड S नॉट ऑन L ये क्या होता, LH होता. ठीक है, देखो जैसे मान लो अगर तुम्हारा इक्वेशन कहीं ऐसे टाइप का बन जाए एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 7y स्क्वायर ऐसे टाइप का इक्वेशन बन गया इज इक्वल टू 0. समझ में आई बात? अगर तुम्हारा ऐसे टाइप का इक्वेशन बन गया तो अगर तुम इस क्वाड्रेटिक को y स्क्वायर कॉमन ले लिया तो ये क्या बन जाएगा, और x बाय वाई को सेट t मान लिया, टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 7 ऐसा हो सकता है, लिख सकते हैं ऐसा. जीरो के बजाय यहाँ पे और कुछ लिख लेते हैं, तो -1 लिख लेते हैं. मान लो ये लिख लिया, -1 लिख लिया. ठीक है, अब देखो टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 7 ये कैसी क्वांटिटी होती है? क्या ये ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी होती, क्योंकि इस क्वाड्रेटिक सर. डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होता और वाई स्क्वायर भी हमेशा पॉजिटिव होता. तो कभी पॉजिटिव और नेगेटिव इक्वल हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते. तो यहाँ पे तुमको देखने में तो एक लोकस टाइप एक इक्वेशन टाइप का दिख रहा होता, लेकिन वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता. तो वैसे टाइप का सिनारियो आपका यहाँ पे बनता है. समझे? तो ऐसा नहीं है कि एक्स और वाई में मैं कोई भी इक्वेशन लिख दूं तो कोऑर्डिनेट एक्सिस में वो कोई कर्व बना के ही दिखाए. कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कुछ भी ना बनाए. फाइन. सो यहाँ पे नो कर्व विल एग्जिस्ट या नो लोकस ऐसा. ठीक है, ये क्लियर है? सर थोड़ा सा ऊपर से और स्क्रॉल करो. का पार्ट हाँ हाँ सर, जो सर्कल्स पे मैंने कुछ जनरल रिजल्ट्स और कोनिक्स लिखाए थे ना, वो पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला सब जगह यूज होगा. हाँ सर. हो गया? ओके, अब हम लोग आते हैं अपने चैप्टर की स्टार्टिंग पे, जो कि है क्या है, पैराबोला. सर, आप ऊपर वाला पॉइंट रिपीट कर सकते हैं? डिजाइन बना देंगे.
बोलो सर वो कर्व डज नॉट एग्जिस्ट वाला, कर्व डज नॉट एग्जिस्ट वाला। देखो जैसे मान लो कि तुम्हारा कोई ऐसे टाइप का एक्स और वाई में इक्वेशन आ गया, ठीक है, ऐसे टाइप का। तो अब ये जो एक्सप्रेशन होता, ये जो लेफ्ट हैंड साइड एक्सप्रेशन होता, वो मैं क्या क्लेम कर रहा हूँ कि वो हमेशा एक पॉजिटिव आउटपुट देता। तो तुमसे वाई स्क्वायर कॉमन ले लो और एक्स बाय वाई को से टी मान लो, तो यहाँ पे क्या बन जाता, टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 7। अब देखो इस क्वाड्रेटिक का जो डिस्क्रिमिनेंट होता हाँ सर वो वो लेस देन नेगेटिव 0 होता। होता। हाँ मतलब इस तो क्वाड्रेटिक मतलब का हम ग्राफ ये कुछ ऐसे कहना चाह टाइप का रहे हो हैं रहा कि होता। हर 2 डिग्री इक्वेशन कर्व नहीं देगा। हाँ ऐसा नहीं कि कोई भी इक्वेशन मैं एक्स और वाई में अपने मन से लिख दूं और वो कोई कर्व क्रिएट कर ही दे, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, तो वो मैं ऐसे एक एग्जांपल दिखा रहा था कि जैसे यहाँ पे तुमको कुछ, जब तुम PS अपॉन PL इज इक्वल टू हाफ करोगे एंड S लाइज ऑन L आएगा, आ रहा होगा, तो एक्स और वाई में तो कुछ इक्वेशन जनरेट तो हो ही रहा होगा। ऐसा नहीं कि एक्स और वाई में कोई इक्वेशन ही जनरेट नहीं हो रहा होगा, लेकिन उस इक्वेशन का प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस कुछ होगा ही नहीं। मतलब वो कोई कर्व जनरेट कर ही नहीं पाएगा। So no curve will exist, मतलब नो लोकस। ठीक है, समझ में आई बात? हाँ सर। यस सर। ओके, तो आते हैं अपने चैप्टर पे, और चैप्टर का नाम है पैराबोला। तो पैराबोला का सबसे पहले डेफिनेशन लिखते हैं। डेफिनेशन क्या लिखूंगा? इट इज द locus of a point such that its distance, its मतलब इसका पॉइंट का डिस्टेंस, from a fixed point is same as its distance from a fixed line. Fixed point is called, fixed point को क्या कहेंगे? Focus of the parabola, and fixed line is called directrix of the parabola. Fixed line is called directrix of the parabola. ठीक है, अच्छा अब ये डेफिनेशन पढ़ के बताओ मेरे को कि क्या ये डेफिनेशन कंप्लीट है, और डू आई नीड टू ऐड समथिंग सर एल्स? इसमें केस ऐड करना पड़ेगा ना कि फोकस डज नॉट लाई ऑन Focus does not lie on हाँ। directrix. हाँ, ये कंप्लीट तब होगा जब फोकस डायरेक्ट्रिक्स पे लाई ना करे। सो इन दिस केस focus does not lie on इस पे directrix. In this case, focus does not lie on directrix. ठीक है, फिर अब लिख लेते हैं कि फॉर पैराबोला एसेंट्रिसिटी क्या होती है? 1। 1 के बराबर होती है, E is equal to 1। ठीक है, अब तुमको ऐसे सोचना है कि सर ये फोकस और डायरेक्ट्रिक्स है क्या? तो फोकस एक फिक्स पॉइंट है और डायरेक्ट्रिक्स एक फिक्स लाइन है। तो तुम ऐसे सोचो कि जैसे सर्कल बनाने के लिए मेरे को कुछ प्री रिक्विजिट्स होती थी ना, जैसे स्ट्रेट लाइन को बनाने के लिए क्या क्या प्री रिक्विजिट है? स्ट्रेट लाइन के लिए पॉइंटर स्लोप, सर्कल के लिए प्री रिक्विजिट क्या थे? सेंटर रेडियस।
सेंटर रेडियस। वैसे पैराबोला के लिए प्रीरिक्विजिट क्या है? फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, जब फोकस और डायरेक्ट्रिक्स हम लोग एक फिक्स पॉइंट और एक फिक्स लाइन जब मिलते हैं तब जाके हमारा पैराबोला बनता है। समझ में आई बात? सो फोकस और डायरेक्ट्रिक्स उतना ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी पैराबोला को डिफाइन करने के लिए या उसका इक्वेशन लिखने के लिए, जितना कि सर्कल के लिए सेंटर और रेडियस, लाइन के लिए पॉइंट और स्लोप प्ले करते हैं। ठीक है, तो अब ये नहीं सोचना कि सर ये फोकस और ये डायरेक्ट्रिक्स कहाँ से आ गया। तो एक तरीके से गिवन होगा क्वेश्चन में। जैसे कोई ऐसा थोड़ा पूछता है कि सर सेंटर और रेडियस सर्कल का कहाँ से आ गया। वो तो सेंटर और रेडियस दिया रहता है तब जाके हम लोग सर्कल बनाते हैं। वैसे ही तुम सोचो कि फोकस और डायरेक्ट्रिक्स दी होगी तब जाके हम लोग पैराबोला बना पाएंगे या उसके इक्वेशन के बारे में कुछ कह पाएंगे। ठीक है, अच्छा अब बात आती है स्टैंडर्ड पैराबोला की। तो स्टैंडर्ड वर्ड और कहाँ पे यूज किया था हम लोगों ने? सर्कल। सर्कल। स्टैंडर्ड सर्कल। तो स्टैंडर्ड सर्कल में क्या था? स्टैंडर्ड सर्कल क्या था? सेंटर सेंटर ओरिजिन है। सेंटर ओरिजिन है तो वो स्टैंडर्ड सर्कल बन जाता था। और रेडियस तो भाई रेडियस ही है, उसका तो कुछ कर नहीं सकता। बस मतलब स्टैंडर्ड सर्कल क्या होता था कि उसके कुछ चीजें फिक्स कर दी जाती थी, जैसे सेंटर फिक्स कर दिया। वैसे ही स्टैंडर्ड पैराबोला में क्या होगा कि वर्टेक्स को ओरिजिन। हाँ, उसकी कोई चीज फिक्स कर दी जाएगी और उससे एक पैराबोला बनेगा। तो जैसे स्टैंडर्ड पैराबोला में क्या होता है कि हम लोग डायरेक्ट्रिक्स को ऐसे लिख लेते हैं, x प्लस ए इज इक्वल टू 0, और फोकस को हम लोग a कॉमा 0 अज्यूम करते हैं। ठीक है, फोकस को हम लोग क्या करते हैं? a कॉमा 0 अज्यूम करते हैं। ऐसा करने से क्या होता है? जैसे स्टैंडर्ड सर्कल में फायदा क्या होता था कि एक बहुत ही सिंपल सा इक्वेशन निकल के आता था सर्कल का। वैसा ही डायरेक्ट्रिक्स और फोकस को ऐसे अज्यूम करने से क्या होगा? एक बहुत ही सिंप्लीफाइड इक्वेशन निकल के आएगा किसका? पैराबोला का। तो लेट्स ड्रॉ कोऑर्डिनेट एक्सिस से ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये क्या हो गया आपका? वाई एक्सिस हो गया। अब देखो x प्लस ए इज इक्वल टू 0, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है x इज इक्वल टू माइनस ए। अच्छा, x इज इक्वल टू माइनस ए मतलब ये ऐसी लाइन होती जो माइनस ए कॉमा 0 पास हो गई और एक पॉइंट होता a कॉमा 0। ठीक है, अच्छा अब p कैसा पॉइंट होता? p ऐसा पॉइंट, इस पॉइंट को हम लोग s कहते हैं और इस लाइन को हम लोग l कहते हैं। फिक्स पॉइंट को हम लोग हमेशा s से डिनोट करेंगे और फिक्स लाइन को अपने हमेशा किससे डिनोट करेंगे? l से डिनोट करेंगे। तो अच्छा ये बताओ, कोई एक पॉइंट ऐसा बताओ जिसके लिए PS और PL इक्वल हो रहे होंगे। ओरिजिन। ओरिजिन होगा वैसा एक पॉइंट। देखो ओरिजिन का ग्रीन कलर यूज कर लेता हूँ। ओरिजिन का अगर मैं पॉइंट P ओरिजिन पे लूँ तो ओरिजिन का जो S से डिस्टेंस है वो A है, और ओरिजिन का जब मैं लाइन से डिस्टेंस निकालूंगा तो वो यही चीज आएगी, यहाँ से लेके यहाँ तक, वो भी A होगा। इसका ये मतलब है कि जो हमारा लोकस है उस पे ओरिजिन लाइक करेगा कि नहीं लाइक करेगा? ओरिजिन पैराबोला करेगा। लाइक करेगा कि नहीं?
करेगा। करेगा। अच्छा, ऐसा एक ही पॉइंट हो सकता है क्या नहीं सर। कि जिसमें पीएस और पीएल सर इक्वल हो? ओरिजिन हमेशा ही लाया करेगा। नहीं, हाँ, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं। ये भी पॉइंट हो सकता है, ये भी पॉइंट हो सकता है, ये भी पॉइंट हो सकता है, ये भी पॉइंट हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि हमेशा पीएस और पीएल ए के ही बराबर हो। ठीक है, वो तो ओरिजिन के लिए पीएस और पीएल ए के बराबर होगा, जो ओरिजिन के लिए होगा। बाकी सब जगह रेस्ट अदर पॉइंट्स जो पैराबोला पे है उस पे क्या होगा, पीएस और पीएल इक्वल होंगे। वो आपस आपस में बस इक्वल होंगे। वो किस नंबर के बराबर होंगे वो नहीं पता हम लोग को, वो मतलब आगे पता करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि वो ए के ही बराबर होंगे। ठीक है, सो फाइनली इन सारे पॉइंट्स को अगर आप ज्वाइन करते तो एक स्मूथ सा कर्व बन जाता, और इसी स्मूथ से कर्व को हम लोग क्या कहते हैं, पैराबोला। इसी स्मूथ से कर्व को हम लोग क्या कहते हैं, पैराबोला। ठीक है, अब कोई कर्व है तो उसका इक्वेशन भी हो रहा होगा कि नहीं? अगर कोई कर्व है तो उसका अपना इक्वेशन होता ही है, यस सर। कार्टेशियन इक्वेशन। तो जैसे मान लो मैंने पी एक पॉइंट ले लिया कर्व पे, तो यहाँ का पी मिटा दे रहा हूँ अपना। पी कोई जनरल पॉइंट ले लिया जिसका कोऑर्डिनेट h, k लिखा। क्यों? क्योंकि हम लोग को लोकस का ही तो इक्वेशन फाइंड करना है। अच्छा, क्या हो रहा है कि पीएस और पीएल इक्वल है। अब तुमको लग रहा होगा कि सर देखने में तो ये बहुत बड़ा है पीएल और पीएस बहुत छोटा है, तो हो सकता है कि मतलब मैंने कर्वेचर थोड़ा गलत ड्रॉ कर दिया हो पैराबोला का। एक्चुअल में क्या होगा, पीएस और पीएल इक्वल होंगे। सो पीएस इज इक्वल टू पीएल। अभी हम लोग क्या करने जा रहे हैं, पैराबोला का इक्वेशन फॉर इक्वेशन ऑफ पैराबोला। पीएस इज इक्वल टू पीएल। अच्छा, पीएस का क्या मतलब है, डिस्टेंस फॉर्मूले से निकलेगा, रूट ऑफ h माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस k माइनस 0 का होल स्क्वायर। अच्छा, पीएल का क्या मतलब है, ये वाला डिस्टेंस। देखो यहां से यहां तक तो डिस्टेंस कितना होता, h होता, और यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना होता, a होता। मतलब ये क्या हो जाता अपना, h प्लस a। अग्री करोगे? ऐसे तो नहीं छोड़ सकते, स्क्वायरिंग वगैरह भी करनी पड़ेगी अपने को। तो स्क्वायरिंग की तो देखो h स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2a प्लस k स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2a। h स्क्वायर कैंसिल हो गया, a स्क्वायर भी कैंसिल हो गया, तो यहाँ से क्या बन गया, k स्क्वायर इज इक्वल टू 4ah या y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ये क्या आ गया हमारा, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। y square is equal to 4ax. This is equation of parabola for us. ठीक है, इसको लिख लो। हमें स्टैंडर्ड पैराबोला ही पढ़ना है, ऐसा नहीं है कि केवल स्टैंडर्ड पैराबोला पढ़ना है, पैराबोला पढ़ना है। देखो स्टैंडर्ड पैराबोला कैसा कहा जाता है कि जिसका ओरिजिन पे वो क्या कहते हैं, वर्टेक्स हो, और ऐसे टाइप का पैराबोला देख रहा हो, मतलब हॉरिजॉन्टल टाइप का। ऐसे टाइप का भी पैराबोला हो सकता है, ऐसे टाइप का भी पैराबोला हो सकता है।
ऐसे टाइप का भी पैराबोला हो सकता है। उसके बाद कुछ पैराबोला ऐसे टाइप के भी हो सकता है। सो अब तुम ऐसे समझो कि 80% जो है वो हम लोग को यही पढ़ना है, बाकी इन सबको मिला के सिर्फ 15% पढ़ना है, और सिर्फ 5% जो है वो हम लोग को इंक्लाइंड पैराबोला पढ़ना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंक्लाइंड पैराबोला? ऐसे टाइप का पैराबोला। ठीक है, हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में भी। ठीक है, सर एक मिनट थोड़ा ऊपर कर। चलो सो फाइनली पैराबोला में क्या हो रहा होगा, जैसे अगर मैं y² इज इक्वल टू 4ax वाले पैराबोला की बात करूं तो वो ऐसे टाइप का हो रहा होगा। अच्छा, यहाँ पे a क्या है? a हम लोग पॉजिटिव मान के चल रहे हैं, और से यहाँ पे ऐसे, तो पैराबोला के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे और से ये डायरेक्टेड से, तो जैसे इसका इससे जो डिस्टेंस है वो इक्वल है। सिमिलरली इसका इससे जो डिस्टेंस है वो इक्वल है। अच्छा, ये लोग ऐसे इक्वल है। समझ में आई बात? बोलो बच्चों। हाँ सर। अच्छा, अगर हम लोग से ये पूछा जाए कि which point on parabola is closest to the focus? सर उसका जो वर्टेक्स सर रहेगा, फोकस से एक परपेंडिकुलर जिस सर उसका जो वर्टेक्स हो जाएगा पैराबोला का, कोई एक बोल रहा है कि वर्टेक्स जो है वो हो जाए, कोई एक मेरे ख्याल से ऐसा कुछ बोल रहा है कि ये हो जाए। सर अगर वैसा हो गया तो नीचे वाला भी तो सेम ही होगा उसका हाँ रिफ्लेक्शन। सर 2 पॉइंट हो सकते हैं फिर। तो कौन सा सही है, पहला कि दूसरा? मतलब फर्स्ट या सेकंड? फर्स्ट वाला होना चाहिए ना। फर्स्ट वाला होना चाहिए, क्योंकि देखो जितना सर अगर हमें कंफ्यूज हो रहा है इससे, तो हम लोग ये देख पी और एल के बीच में डिस्टेंस देख सकते हैं ना, वो जितना कम एग्जैक्टली होगा उतना ही रहेगा। हाँ, देखो
हम लोग को ये पता है कि PS इज इक्वल टू PL है हमेशा। तो अगर हम लोग कंफ्यूज हो जा रहे हैं तो मैं ये सोचूं कि PS मिनिमम कब होगा, जब पॉइंट P का L से डिस्टेंस मिनिमम होगा। अब पॉइंट P का L से डिस्टेंस तो ओरिजिन पे ही मिनिमम होगा ना, मतलब वर्टेक्स पे ही मिनिमम होगा ना, नहीं तो बाकी सब जगह देखो डिस्टेंस ज्यादा है। ठीक है, so which point on the parabola is closest to the focus? What will I write? Vertex of the parabola. समझ में आई बात? Vertex of the parabola. अब देखो इसके ऊपर अगर मेरे को क्वेश्चन बनाना हो, एक इस इंफॉर्मेशन पे अगर अब if I want to frame a question, तो मैं ऐसे अगर क्वेश्चन बनाऊं कि एक पैराबोला है y² इज इक्वल टू 8x और इसका फोकस जो है वो 2,0। अ सर्कल, क्या लिखा है? अ सर्कल सेंटर्ड एट फोकस touches the parabola, touches the parabola, then find equation of the circle, then find what? Equation of the circle. ऊपर वाले लॉजिक पे ही क्वेश्चन है। देखो सर्कल का सेंटर तो तुमको पता है, बस फाइंड क्या करना है? रेडियस। रेडियस। तो रेडियस कितना होगा वो सोचना है। अब देखो जैसे मैं सर सर x² प्लस हाँ y² माइनस 4x इक्वल सर टू 0। रेडियस 2 हो जाएगा। हाँ सर वो हम ये बोल सकते हैं ना कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस परपेंडिकुलर होता है और हमें परपेंडिकुलर ही चाहिए ना। हाँ देखो तुम ऐसे सोचो बच्चों, जैसे मान लो ये तुम्हारा फोकस है और यहीं पे सर्कल का सेंटर है और ये क्या है तुम्हारा? पैराबोला। ठीक है, तो तुम ऐसे सोचो कि अगर जैसे मान लो यहाँ से अगर सर्कुलर वेव जनरेट होती, धीरे धीरे बड़ी हो रही होती, बड़ी हो रही होती सर्कुलर वेव, तो वो पहले कहाँ पे जाके स्ट्राइक करती? वर्टेक्स पे। पैराबोला पे, वर्टेक्स पे जाके स्ट्राइक करती। इस बात से Yes. अग्री करोगे? अच्छा, जब वर्टेक्स पे जाके स्ट्राइक करती तो क्या वो पैराबोला को और किसी पार्ट पे मीट कर रही होती क्या? नहीं सर। नहीं सर। नहीं सर। नहीं कर रही होती। तो एक मिनट रुको, मेरे को बनाने दो। तो जैसे मान लो कुछ से
नॉर्मल हैंड से बना लेते हैं। ये वो सर्कल होता जो पहली बार स्ट्राइक किया होता, मतलब पहली बार मीट किया होता, और वो मीट भी किया होता तो कहाँ पे किया होता? वर्टेक्स पे किया होता। अच्छा, अब अगर मैं इस सर्कल के रेडियस को और बढ़ाऊं तो क्या सीन बन सकता था? से 2 पॉइंट पे टच करेगा। हाँ, 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता, टच नहीं करता उसको। हाँ हम लोग सर, क्या कट कहते हैं? 2 करता। पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता। इंटरसेक्ट। ठीक है, मतलब वो आपका सर्कल कुछ ऐसे टाइप का हो जाता, थोड़ा और जाता तो ऐसे टाइप का कुछ सर्कल हो जाता तुम्हारा। ठीक है, तो वो तो टच वाला सिनारियो होता ही नहीं। तो एक ही बार टच हो रहा होता और वो इस केस में टच हो रहा होता, और उसका जो रेडियस होता वो पता है कितना होता? ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस क्या है? 2 है। सो हमारा सर्कल का इक्वेशन क्या हो जाएगा? x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर, क्योंकि सर्कल का सेंटर तो वही है, फोकस है, और रेडियस कितना हो जाएगा? 2 का होल स्क्वायर। दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ सर्कल। ये क्या होगा? अपने सर्कल का इक्वेशन होगा। ठीक है, समझ में आया? हाँ सर। ओके। अब जैसे इस क्वेश्चन को अलग अलग लैंग्वेज में फ्रेम किया जा सकता है। जैसे अगर मेरे को, तुम ऐसे सोचो कि एक बीच है पैराबोलिक शेप में, एक बीच है पैराबोलिक शेप में, ठीक है, इधर वो है क्या कहते हैं, सैंड वगैरह है, और इधर पानी है, और इस पैराबोला का जो फोकस है वहां से एक से सुनामी जनरेट हुई या कुछ जनरेट हुआ, सुनामी जनरेट हुई चारों तरफ, तो सबसे कम सेफ कौन होगा? वर्टेक्स पे जो जो है। वर्टेक्स पे खड़ा है। जो वर्टेक्स पे है। हाँ, जो बंदा वर्टेक्स पे खड़ा है वो सबसे कम सेफ होगा, मतलब उसको सबसे पहले बार जाके सुनामी हिट करेगी, और फिर थोड़ी देर बाद जाके फिर इन सबको हिट करेगी। एंड यू नो व्हाट, जितना हम लोग इधर आगे बढ़ते चले जाएंगे उतना फोकस से डिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो इस पॉइंट को S1 सॉरी, इस पॉइंट को P1 कह दिया, इस पॉइंट को P2 कह दिया, इस पॉइंट को P3 कह दिया, तो मैं क्या कह सकता हूँ? मैं कह सकता हूँ कि P1S जो है वो P2S से छोटा होता, और P2S जो है वो P3S से छोटा होता, एंड सो ऑन। क्यों? क्योंकि तुम डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस देख लो, तुमको अपने आप समझ में आ जाएगा। फाइन, चलो इतनी चीज क्लियर है तुम लोग को? सारे बच्चे लोग एक बार कमेंट करो चैट बॉक्स में, आज जो भी हम लोग ने किया क्या वो समझ में आया? तो आज हम लोग ने इंट्रोडक्शन ऑफ कोनिक्स किया है और थोड़ा सा पैराबोला स्टार्ट किया है। सो नेक्स्ट क्लास में पैराबोला से रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज, मतलब बहुत सारे टर्म्स होते हैं पैराबोला से रिलेटेड, वो सारी चीजें अपने नेक्स्ट क्लास में वी विल कंटिन्यू, मतलब ओके। और एक दिन बैठ के डाउट्स वगैरह भी कर लेते हैं। तो नेक्स्ट सेशन जो डाउट्स का होगा हमारा सर्कल्स का, हम लोग ने 30 तक डिस्कस कर लिया था आई थिंक। तो नेक्स्ट सेशन जो डाउट्स का करेंगे वो 31 से 60 तक करेंगे। सो 31 से 60 तक आप लोग कंप्लीट करके रखो जेई लेवल का सर्कल्स।
जिन्होंने कर लिया है वेल एंड गुड, वो लोग आगे कर लो, जिन्होंने नहीं किया है वो कर लो, ठीक है। 2-3 दिन में मैं डाउट्स करूंगा डिस्कस, थोड़ा थोड़ा करते रहेंगे ना, मतलब 20-30 क्वेश्चन का, तो हम लोग के ऊपर ज्यादा लोड नहीं पड़ेगा और होता भी जाएगा। एक साथ अगर 50-100 क्वेश्चन का डाउट्स करने बैठेंगे तो फिर बहुत टाइम लग जाता है। ओके, सो 31 to 60 J लेवल सर्कल्स डाउट्स 2 दिन में करेंगे, 2-3 दिन के अंदर। चलो मैं नोट्स भेज दूंगा इसके। और चलो आज के लिए इतना ही करते हैं, गुड बाय। अरे नोट्स भेज दो सर। हाँ मैं भेज दूंगा, नोट्स भेज दूंगा। डाउट क्लास सोनल 2-3 दिन बाद रखेंगे। चलो गुड बाय।